This school is located in Mahatma Gandhi Nagar, Jhumri Tilaiya, Kodarma. First of all, we attended our prayer assembly, and then we are here. And in this session, we welcome all of you. And today, our chief guest, Honorable our Principal Sir, Sri Sarmendra Kumar Shahuji, we give a warm welcome to you from our school teachers. And today, as it is pre-scheduled that there will be two classes. First class is resource person Chandrasekhar Kumar, and his subject is joyful mathematics. And the second is Sri Deepak Kumar Vishwakarma ji, whose subject is cyber securities and ethics. As everyone knows that Deepak Kumar Vishwakarma is a school nominated teacher coordinator of in-house training. So the first session will start from 10:15 a.m. and it will continue till 11:15. But everybody knows that in this series, a number of trainings such like CBSE oriented training, Diksha oriented training, Nishtha oriented training, and Vidya oriented training are going on. And we teachers have to do these trainings. In this series, in-house training is organized by our managing committee. So, in this series, the first class will be taken by Sri Chandrasekhar Kumar, who is in the left side of our chief guest, Sriman Chandrasekhar ji, and your subject is joyful mathematics. Now, I think our principal sir, if allows, then you will start to take your class. Thank you. इसको खोलना पड़ेगा ना। नित्य वंदनीय माँ शारदे, ओम भारत माता। आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं मेरे प्रिय आचार्य बंधु भगिनी, आप सभी को नमस्कार। सीबीएसई के द्वारा आयोजित उसके तहत हम लोग जो है ये सेशन में पहले सेशन में उपस्थित हैं। मेरा विषय है जॉयफुल मैथमेटिक्स। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, किसी विद्वान ने कहा डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बम्स। उनका कहना है कि किसी भी देश को यदि बर्बाद करना है, नष्ट करना है, तो किसी भी प्रकार के एटॉमिक बम की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? लॉन्ग माइल्स मिसाइल, इट ओनली रिक्वायर्स लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। केवल शिक्षा के स्तर को यदि उस देश का गिरा दिया जाए तो वह देश अपने आप क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। इस चलते हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा सीबीएसई संचालित जितने भी स्कूल हैं, उन सभी जगह जो है क्वालिटी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए जो है यह प्रशिक्षण वर्ग लगाने का जो है कार्यक्रम चल रहा है। The Central Board of Secondary Education is a board of education for public and private school under the Union Government of India, Minister of Human Resource Development as its parent organization. CBSE in all these years has set a good standard of education in India.
बहुत सालों से अपने देश में सीबीएसई जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही है, उसका देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने के लिए विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत 2020 में हमारे सरकार के द्वारा एक शिक्षा नीति लाई गई है, जिसे हम लोग 2020 की नई शिक्षा नीति कहते हैं। इसी के अंतर्गत शिक्षकों का निरंतर जो है प्रैक्टिस प्रशिक्षण होते हो रहना अति आवश्यक है। आज जो है अपने विषय को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले जो है सीबीएसई के द्वारा क्या ऑब्जेक्टिव्स, मैथ को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है, क्योंकि कहा जाता है बिना लक्ष्य के किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कंसोलिडेट द मैथमेटिक्स नॉलेज एंड स्किल एक्वायर्ड। सबसे पहला जो है मैथमेटिक्स की जो ज्ञान है और स्किल जो है उसको क्या करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पार्टिकुलरली बाय द वे ऑफ मोटिवेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, टर्म्स, प्रिंसिपल एंड सिंबल्स एंड अंडरलाइंग प्रोसेस एंड स्किल्स। नेक्स्ट है डेवलप मास्टरी ऑफ बेसिक अलजेब्रिक स्किल्स, डेवलप ड्राइंग स्किल, feel the flow of reason while approving a result for solving a problem. Apply the mathematical knowledge and skill to solve real life problems by developing ability to think, analyze and articulate logically. Develop awareness of the need for national integration, protection of environment, observation of a small family, norms, removal of social barriers, elimination of gender biases। तो शिक्षा का उद्देश्य, गणित का भी उद्देश्य है कि लोगों में यूनिटी लाए, हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारा देश आगे बढ़ते रहे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं जो है अब अपने विषय पर सबसे पहले प्रवेश करना चाहता हूँ। पहला एक्टिविटी है, शिक्षा कहती है कि नई शिक्षा नीति के तहत कहा जाता है पहले जो है उनको जो है आप एग्जाम्पल बतलाइए और तब जाके जो है उसको ऑब्जेक्ट की तरफ जो है जो आपका उद्देश्य है पढ़ाने का, उस जिस चीज़ को सिखाना है वहाँ तक पहुँचिए। तो यहाँ आप दो चित्र देख रहे हैं, इसमें जो है पहचानना है कि कौन सा जो है वेरिएबल्स है, कौन सा कांस्टेंट है, मतलब कौन कौन सा ऑब्जेक्ट जो है मूव कर सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह पर स्थिर रह सकता है। कोई भैया बहन बतलाइए इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट जो है, फिगर क्लियर नहीं दिख रहा है? इसमें जो है आसपास का जो वातावरण होता है उसमें जैसे पेड़ है, पौधा है, सड़क है, कार है, साइकिल है, आदमी है, ये सारे चीज़ जो है तो इसमें जो है बतलाना है कौन सा चीज़ मूव कर सकता है, कौन सा चीज़ जो है कांस्टेंट रहता है। Vehicles are variables and homes, buildings are कांस्टेंट। तो इसी प्रकार से जो है कार्स आर वेरिएबल, मतलब वो मूव कर रहा है। तो मैथमेटिक्स में भी कुछ चीज़ों की वैल्यूज़ क्या होती है, वेरी करती है, और जिन चीज़ों का वैल्यू वेरी करती है, मूव करती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से जो है उसको डिनोट करने का काम करते हैं। एक्स वाई जेड जिसका वैल्यू वेरी करते रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होता है जैसे जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे नंबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, जितने भी नंबर हैं इन नंबर को हम जो है चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट कहलाता है। तो मेरे समझ से ये बात सभी लोग के समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। अगला एक्टिविटी है, इसमें जो है आप देख सकते हैं 9 डॉट्स है। ये 9 डॉट्स जो है इसको इस प्रकार से मिलाना है कि कहीं पर ये जो है एक दूसरे को टच ना करे। 9 डॉट्स जो है ये किसी को टच ना करे और 4 लाइन केवल बनेगा और कोई भी डॉट्स छूटना नहीं चाहिए। अपने अपने कागज़ कॉपी में जो है बना के आप लोग जो है प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश कीजिए सभी को। क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ड्राइंग कैसे करवाया जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स का उद्देश्य है कि बच्चे को ड्राइंग भी आना चाहिए। किन्हीं के पास कागज़ नहीं है तो ले सकते हैं, मेरे पास कागज़ है, हम लेके आए हैं। यदि किन्हीं को कागज़ की आवश्यकता है तो ले सकते हैं। हाँ बतलाइए। किसी भी तरह से हॉरिजेंटल वर्टिकल किसी, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। नहीं छूटा तो कोई नहीं। नहीं तो वो रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू 4 से ज़्यादा लाइन हो गया दीदी जी। हाँ केवल 4 लाइन होगा, 4 लाइन्स। केवल 4 लाइन बनाना है। नाइन डॉट्स है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कनेक्ट ऑल द 9 पॉइंट्स टू मेक 4 लाइन्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ लाइन और पॉइंट्स, और कंटिन्यू छूट गया तो मेरा फॉल्ट है, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर ये हम बनाए, तो इससे बच्चा में जो है उत्सुकता भी जागृत होगा कि उसको खेल जैसा लगेगा और उसका ड्राइंग भी मजबूत होगा, और साथ ही साथ शेप भी उसको समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए। अच्छा उस लाइन का एंड पॉइंट तो लास्ट में हो गया उधर। हाँ लेकिन ठीक ठीक है, एक शेप ट्रायंगल जैसा शेप बनाओ, तीर बन गया। उसका तो एंड पॉइंट लास्ट में हो तो पॉइंट गिनती हो जाएगा लास्ट में। नहीं पॉइंट गिनती नहीं हो रहा है। हमको टास्क मिला है केवल 9 पॉइंट्स को मिलाना है, केवल पॉइंट को टच होना चाहिए, ये टास्क था। कितना लाइन होना चाहिए? 4। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें जो है 3 नंबर है। ये 3 नंबर जो है, ये तीनों नंबर को जो है मिलाना है अपने नंबर से, 1 2 3, और ये तीनों नंबर जो है किसी भी लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, सभी को मिलाना है। और ये तीनों नंबर जो है एक दूसरे को क्रॉस, जिस लाइन से मिलाएंगे वो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। दिख रहा है ना सबको? 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, ऊपर नीचे 3 है। इसको मिलाना है। ये नंबर सबको, एक नंबर जो है सेम नंबर जो है
उसको मिलाना है। कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से मिलाना है। हाँ दिखाइए, लाइए आगे लाइए। उतना दूर से हमको नहीं दिखता है, देखते हैं चश्मा लगाए हुए दूर का। तो ऐसे मिल गया। हाँ कोशिश किए हैं, ये देखिए ठीक है, लेकिन ठीक है, ये स्क्वायर से बाहर चला जा रहा है ना, स्क्वायर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देखिए एक डस्टर मंगा देते ना। क्रॉस एक भी नहीं किया है, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप लोग, एक दूसरे के क्रॉस नहीं है और बॉक्स से बाहर भी नहीं है। हो गया, आगे बढ़े हम। एग्जाम्पल जो हम लिए हैं, ये एग्जाम्पल लिए हैं कि बच्चों को किस प्रकार से एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के साथ साथ जो है उसको बोरिंग क्लास, जनरली जो है मैथमेटिक्स क्लास जो है बोरिंग लगता है। इस क्लास के विषय में बच्चों को यह धारणा बन जाती है कि यह जो है बोरिंग क्लास होता है। और हमारा शिक्षा जो है प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी, धीरे धीरे बच्चों का जो है इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, तो जब तक उसको मैथमेटिक्स के प्रति जो है प्यार नहीं बढ़ेगा, उसका लगाव नहीं बढ़ेगा, तब तक वह जो है उसका इंटरेस्ट मैथ के प्रति नहीं बढ़ेगा। तो पहले तो उसको जो है यह प्रयास किया जाना चाहिए कि मैथ के प्रति जो है उसका लगाव बढ़े। लगाव कैसे बढ़ सकता है, तो उसको कोई भी मैटर जो है, कोई भी धारणा जो है, पहले जो है उसको खेल से शुरू करने का प्रयास करना चाहिए। एक अच्छे एक्टिविटी के साथ जो है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक और एक्टिविटी है हमारा यहाँ पर, मैच स्टिक है, केवल मैच स्टिक का यूज़ किया गया है। इसमें हमको जो है इक्वेशन सॉल्व करना है। क्लास 6, 7, 8 में जो है वेरिएबल्स और कांस्टेंट के जो है इक्वेशन आते हैं, तो इक्वेशन किस प्रकार से बन सकता है, तो इक्वेशन को बताने से पहले जो है इस एक्टिविटी को हम करवा सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि कोई भी मैच स्टिक को ऐड नहीं करना है और कोई भी मैच स्टिक को रिमूव नहीं करना है, लेकिन बहुत सारा इक्वेशन बनाना है जिसका रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे 6 + 4 करेंगे तो 4 नहीं आएगा, लेकिन इसको हम कैसे मैच स्टिक को, किसी एक मैच स्टिक को हिलाकर किस प्रकार से हम 4 ला सकते हैं, इस चीज़ को बतलाना है। प्रयास कीजिए। मैच स्टिक, एक्स्ट्रा मैच स्टिक यूज नहीं करना है और ना मैच स्टिक रिमूव करना है। बिना रिमूव किए ही जो है इसको जो है हमको
हाँ बतलाइए श्वेता जी। 0+4। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। श्वेता जी के लिए एक बार सब लोग करतल ध्वनि एक करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन और भी इक्वेशन बनेंगे, और भी इक्वेशन बतलाइए। और 8-4 क्या करेंगे, यहाँ वाला मैच स्टिक उठाकर यहाँ डाल देंगे। 8-4। तो इस प्रकार से जो है हम बच्चों के इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। खेल खेल के माध्यम से जो है उसको हम बतला सकते हैं कि किस प्रकार से वो जो है आगे बढ़ सकता है। मेरे पास कुछ चीट है, ये चीट जो है इसमें नंबर लिखा हुआ है, कुछ नंबर लिखा हुआ है। इस चीट को उठा करके जो है जो नंबर है हम जो है पहचानेंगे कि इसमें जो है कौन नंबर 2 से डिविजिबल है और कौन नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। एक एक करके आएंगे। यहाँ पर 2 बॉक्स हम बना देते हैं। आप जो नंबर बनाएंगे उसको हम जो है अलग अलग बॉक्स में डालते जाएंगे। चीट उठाइए और नंबर हमको बतलाइए और किधर डालेंगे ये हमको बतलाइए। वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है ये भी हमको बतलाइएगा। 32 2 से डिविजिबल है सर। तो इसको हम किधर डालते हैं, इधर डालते हैं इवन की तरफ। और आइए कितना है 28। 28 भी 2 से डिविजिबल है। बोलिए भैया। 4 नंबर 2 से डिविजिबल है। वन 2 से डिविजिबल है भैया, नॉट डिवाइडेबल है, नॉट डिविजिबल है। ठीक, इसको इधर डाल देते हैं। ठीक 18। ठीक ध्यान नहीं रह पा रहा है ना। तो अब देखा जाए यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स आया है जो कि हम अलग अलग बॉक्स में दिए हैं। एक को हम ऑड बुला रहे हैं, दूसरे को इवन बुला रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो 2 से नंबर, जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। इसी प्रकार से जो है हम इसी कागज़ से जो है एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अब इसी चीट से जो है हम बतलाएंगे कि जो नंबर जो है पूछेंगे कि कौन कौन सा नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल है अपने आप, और उस 1 को छोड़ करके दूसरे किसी भी नंबर से जो डिविजिबल नंबर है उसको चूज करना है और उसको अलग अलग बॉक्स में डालेंगे। तो इस प्रकार से मान लिया जाए हम आगे बढ़ते हैं तो ये बच्चे को समझ में आएगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। बड़े बड़े क्लास में भैया बहन पहुंच जाते हैं लेकिन उनको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में जो है कन्फ्यूजन रह ही जाता है। तो एक बार और सभी लोग प्रयास करेंगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है। एक बार और चीट चूज करेंगे।
आइए, जो लोग नहीं आए थे वो लोग आइए एक एक करके। ये कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है ये बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ, बोलिए मुरली सर। 28 इसको क्या बोलेंगे भैया? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। इसको भी तो कंपोजिटिव बोलते हैं। हाँ, जो एक से अधिक नंबर से डिविजिबल है उसको कंपोजिट बोलेंगे। प्राइम नंबर 19। और आइए कोई, आइए आइए, आप बैठिए सर। चुनिए सर, एक चुनिए। 24 कंपोजिट नंबर है। 17 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है 17। हाँ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्राइम नंबर है 16। तो ये कंपोजिट नंबर है। सॉरी, 16। ये सारे नंबर इस साइड हमने जितना लिखा सारा नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। और इधर जितना लिखा प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट किसको कहेंगे और प्राइम किसको कहेंगे? वैसे नंबर जो 1 और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य नंबर से भी डिविजिबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। और वैसे नंबर जो केवल 1 और अपने आप से डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसको हम बच्चे को 2 भागों में करवा सकते हैं। 1 to 50 तक लिख करके उसको बोल सकते हैं कि तुम जो है सर्किल करो या क्रॉस करके उसको काटो। एक ही नंबर लिखने पर उसमें ऑड और इवन करके प्राइम और कंपोजिट करके जो है चुनने के लिए बोला जा सकता है। तो इससे बच्चे को भी जो है क्या होगा, उसमें जागृति आएगी और उसको पढ़ाई बोझिल नहीं लगेगा। तो ये एक तरीका हो गया एक्टिविटी के द्वारा स्टार्ट करना किसी भी क्लास को। अब सवाल उठता है कि हाउ टू मेक मैथमेटिक्स जॉयफुल। इतना एग्जाम्पल हमने दिया, तो एक एग्जाम्पल जो है आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को, मैथ को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जॉयफुल आनंददायक बनाने के लिए हमको क्या करना है? इनोवेटिंग टीचिंग। हमको शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा जो है क्या होना चाहिए? आविष्कारक होना चाहिए। आविष्कार करने की प्रवृत्ति बनी हुई रहनी चाहिए। कनेक्टिंग मैथमेटिक्स टू डे लाइफ। अब जो है मैथमेटिक्स को कैसे हम जो है अपने प्रतिदिन के काम से जो है जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक पहले क्रियाकलाप हम करवाएंगे, एक्टिविटी करवाएंगे। सबसे पहले जो है एक हम ये 7 लीटर का जग लिए और दूसरा जो है हम 5 लीटर का जग लिए।
और इससे बोला जाता है कि हम किस प्रकार से जो है 4 लीटर जो है 4 लीटर हम कैसे काउंट करेंगे। 4 लीटर हमको किसी को देना है, मेरे पास 7 लीटर है, मान लीजिए 2 बर्तन ही है, एक 7 लीटर का एक 5 लीटर का। मेरे पास तेल बहुत है, जार में रखा हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है 4 लीटर ही नाप करके देना है। बर्तन मेरे पास 7 लीटर और 5 लीटर का है, किस प्रकार से इनको बोलने दीजिए। 7 लीटर वाले से 5 लीटर में भरेंगे, ठीक, 2 लीटर बच जाएगा। हाँ एक बार में 2 लीटर, हाँ ये दोबारा भरेंगे, हाँ, मतलब एक नया बर्तन में हम 2 लीटर इसका नया बर्तन नहीं लेना है, यही 2 बर्तन है। हाँ बैठिए। So we take double of 7 liter. हाँ We take double of 7 liter. That is 14 liter. हाँ। Then we take double of 5 liter. That is 10 liter. 14 minus 10. That is 4 liter. नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। बर्तन नहीं है ना मेरे पास उतना बड़ा कि 10 लीटर और 14 लीटर हम जो है डिडक्ट करें। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हाँ बताइए सर। आप ये तीन ही है ना? 2 ही बर्तन है, 7 लीटर है, 5 लीटर। 7 लीटर जो है हाँ वो 4 लीटर वाले को देना है ना? 4 लीटर ही देना है। 7 लीटर और 5 लीटर बर्तन है, हाँ उससे 4 लीटर हमको नापना है, किसी को देना है। हाँ देना है। हाँ तो सबसे पहले आप 7 लीटर वाला में 7 लीटर भरेंगे, हाँ ठीक। ठीक है? हाँ 7 लीटर से 4 लीटर वाला बर्तन नहीं है? नहीं बर्तन नहीं है, 5 ही लीटर वाला बर्तन है। हम बात ही नहीं समझ रहे हैं। तो कोई भी बर्तन देखिए, है ना? देखिए आप जात सही रहे हम थे। वही कर रहे थे। हाँ। 7 में भरे और फिर उससे 5 लीटर उसमें डाल दिए। हाँ। 2 लीटर इसमें बच गया। 2 लीटर 2 बच, लीटर उसको दे देंगे। हाँ 2 लीटर दे 2 लीटर देंगे। दे दिए। हाँ 2 लीटर और देना है। हाँ तो अभी 5 वाला में तो पूरा 5 है मेरा ना? हाँ 5 बच नहीं तो गया। 5 वाला को हम फिर डाल सकते हैं टंकी में। हाँ टंकी में डाल दीजिए और फिर इसमें से 7 लीटर डालिए, फिर 5 लीटर उसमें डाल के 2 लीटर इसको दे दीजिए। 7, हाँ 7, देखिए 7 में से 5 घटाएंगे, 2 बचा, ठीक है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, फिर इसमें जो है हम कितना भरेंगे, 7 फीट पर जाएंगे। फिर जो है इसको हम 7 पूरा भरेंगे। पूरा भर देंगे। और फिर 5 वाला में डाल देंगे तो 2 फिर फीट बन जाएगा, 2 इसमें डाल देंगे। तो इसमें जो है 7 में से 3 घटेगा, 4। इसमें जो है आप देखिए क्लियर हम बता रहे हैं। बतलाइए। मेरी बात सुनिए। आप 7 लीटर को कंप्लीट भर दिए, ठीक है? 5 वाला बर्तन में आप 5 लीटर डाल दीजिए, ठीक है? हाँ। लेकिन ये मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ सर बोलिए ना। आप अपना हिसाब किताब में लगे हुए हैं। हाँ आप 7 से 5 वाले में डाल दिए, कितना बचा? 2। अरे किताब छोड़िए ना। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। तो 2 लीटर बचा तो हम 2 लीटर उस व्यक्ति को, पवन जी को दे दिए। हाँ अब देखिए कि जो 5 लीटर वाला जो बचा हुआ तेल था, फिर उसको डाल देंगे 7 वाला में, और जो टंकी है उससे पूरा कंप्लीट 7 वाले को भर देंगे। हाँ। अब फिर 5 लीटर वाला में 5 लीटर डाल देंगे, 2 लीटर फिर बच गया। हाँ। फिर पवन जी को दोबारा दे देंगे, हो गया। नहीं ठीक है, लेकिन जो शुरुआत की थी वही देखिए इसमें जो है यह 7 लीटर जो है, 7 लीटर वाले से 5 लीटर में हम डालें, ठीक है? इसको जो है इसमें 5 लीटर भरा, 5 लीटर भरने के बाद जो है फिर जो है इसमें कितना बच गया, 2 लीटर बच गया, 2 लीटर बच गया। 2 +
अब जो है इसको जो 5 लीटर वाले को जो है खाली करके ये 2 लीटर इसमें डाल देंगे, ये बात पता नहीं। ठीक है ना। क्या कर दिए? ये 2 लीटर को खाली करके ये 5 लीटर वाला 2 लीटर खाली करके इसमें डाल दिए, ठीक है ना। और कहाँ रखेंगे वो? वो जिस टंकी से निकाल रहे हैं उसी में रखेंगे। इस टंकी से फिर 7 लीटर नाप लेंगे। हाँ तो फिर 5 वाले में डाल देंगे। तो फिर 7 लीटर जब नाप लिए तो फिर क्या करेंगे, इसमें बर्तन में कितना जाएगा, 3 लीटर ही जाएगा। तो जो बचा इसमें 7 में से 3 जो बचा, कितना बचा, 4 लीटर बचा। मेरा वाला शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं चलेगा? नहीं, एकदम चलेगा, नहीं चलने का सवाल ही नहीं है। तो डे टू डे लाइफ जो एग्जाम्पल है उसको ले करके हमको जो है आगे बढ़ना है। फिर जो है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, एक्टिविटी कराने के लिए हमको क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। विदाउट प्लानिंग कक्षा में जाएंगे तो कक्षा नीरस होगी। तो कोई भी क्लास जाने से पहले क्या होना चाहिए, एक निश्चित प्लानिंग होनी चाहिए। इसी कारण हम लोग को क्या करना पड़ता है, रोज़ाना जो है लेसन प्लान बनाना पड़ता है। और लेसन प्लान में यदि हम जो है विदाउट टीचिंग ऐड किए जाते हैं तो वह बच्चा जो है क्या होता है, नीरस हो जाता है। बिना एक्टिविटी के काम कराते हैं तो उसका क्लास जो है नीरस होते चला जाता है। और यही कारण है कि बच्चा जो है शिक्षा के प्रति जो है अरुचि उसका बढ़ता चला जाता है, उसका जो है इंटरेस्ट घटता जाता है। और ख़ास करके मैथमेटिक्स को जो है जब तक इंटरेस्टिंग ना बनाया जाए तब तक बच्चा जो है उसमें आनंद का अनुभव नहीं करेगा, तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। अगला जो है रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स में क्या होना चाहिए, रिक्रिएशन मतलब हमारे पास जो है ऊर्जा होना चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। हमको दिन प्रतिदिन क्या करना चाहिए, अपने आप को टीचिंग से, शिक्षा से, अध्ययन से, स्टडी से जोड़े हुए रखना चाहिए, जिससे कि नए नए तकनीक हम खोजें और उसको जो है बच्चे तक पहुंचाने का काम करें। आज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ चुके हैं जिसका हम जो है यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर। बच्चे को कंप्यूटर में गेम खेलना, गेम पर आधारित जो है हम ऐसे ऐप का यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा बच्चे जो है आसानी से गणित को सीख सके। उसी दौर में जो है आज जो है शिक्षा के साथ क्षेत्र में जियोजेब्रा एक मोबाइल ऐप है जिसका आप यूज करके बच्चों के ऑनलाइन क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जियोजेब्रा के यूज से जो है आप तरह तरह के जो है चीज़ों को यूज़ करके जो है उसको क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का काम करेंगे। बच्चों में जागृति उत्पन्न होगा। यदि उसका प्राइमरी सेक्शन, बेसिक यदि उसका मजबूत हो जाता है तो आपकी शिक्षा जो है क्या होगी, अच्छी होगी और बच्चा भी जो है अच्छी तरह से उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेगा। जियोजेब्रा जो है एक टेक्निक है, मोबाइल टेक्निक है। आसानी से जो है आप इसको मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके द्वारा जो है बहुत सारा एग्जाम्पल है उसमें। जियोजेब्रा के द्वारा जो है आप इन सारे चीज़ को जो है बतला सकते हैं। उसमें मूविंग है, डायमेंशन है, ग्राफ है, ज्योमेट्री है, बहुत सारा चीज़ है जिसका कि आप आसानी के साथ जो है मोबाइल में ऑनलाइन क्लास में यूज करके उसको बताया जा सकता है।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसमें जो है पॉइंट को डिनोट करना, कोई भी चीज़ को जो है बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। आर्ट इंटीग्रेशन, आर्ट इंटीग्रेशन शिक्षा को, मैथ को जो है प्रतिदिन जो है हम जो है के कार्य से जोड़ सकते हैं, जैसे बैलेंसिंग द कैश बुक, शॉपिंग फॉर द बेस्ट प्राइस, प्रिपेयरिंग फूड, फिगरिंग आउट डिस्टेंस, टाइम एंड कॉस्ट फॉर ट्रैवल, प्लेइंग म्यूजिक, लैंडस्केपिंग। मतलब कि जीवन का हर रोज़ का बहुत सारा काम यदि कहा जाए तो बिना मैथमेटिक्स के संभव नहीं है। घर में यदि खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का भी काम जो है मैथमेटिक्स के हिसाब से ही होता है। कुकर में चावल बनाना है तो 1 गिलास चावल डालना है तो कितना गिलास उसमें पानी डालेंगे। रेशियो जब तक सही नहीं होगा वो सही भोजन नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा मैथमेटिक्स जॉयफुल कैसे बनेगा। इनोवेटिव टीचिंग का जो है कुछ हमने लिखा है, टू लर्निंग प्रॉब्लम्स, रोल डाइस। हम जो है क्लास में जो है डाइस लेकर, आप लोग लूडो खेले होंगे, लूडो में जो होता है उछालने वाला जो होता है छक्का जिसको हम बोलते हैं, 6 फेस होता है और उसमें जो है हर फेस पर जो है कुछ अंक 2 या 2 से अधिक वो उसको लेकर जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के काम जो है उसको हम करवा सकते हैं। मान लिया जाए 2 छक्का है, उसमें जो है हम जो है एक में कितना आया, दूसरे में कितना आया, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा। तो इस तरह से खेल के साथ साथ जो है उसको हम जो है कुछ काम को करवा सकते हैं। म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स, म्यूजिक का मैथमेटिक्स के साथ गहरा संबंध है। जो म्यूजिक जानते होंगे वो जानते हैं कि उसमें जो है गणना होती है, गणना करके लोग जो है सिखाने का काम करते हैं। जब तक आप सही गणना नहीं कर सकते हैं तब तक आप इंस्ट्रूमेंट को सही ढंग से बजा नहीं सकते। तो ये बहुत सारा चीज़ है जिसको कि हम साथ ही साथ जो है जैसे स्टोरी टेलिंग, बच्चे लोग को मोबाइल और जो है टीवी में सीरियल देखते हैं, जैसे भीम का सीरियल जो है बहुत प्रसिद्ध है, तो उसको स्टोरी टेलिंग। एक बार भीम जो है एक प्रतियोगिता में, कुश्ती की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वह टुनटुन आंटी के जो है दुकान पर गया, वहाँ पर उसको टुनटुन आंटी ने 12 लड्डू दिए। 12 लड्डू दिए तो उसमें से जो है वह लड्डू लेके जब चला तो उसमें से जो है उसके पास उस समय 12 लड्डू थे। वह अकेले वो 12 लड्डू को खा सकता था, लेकिन रास्ते में चलते समय उसको जो है चुटकी मिल गई। चुटकी मिल गई तो उसका हिस्सा कितना हो जाएगा अब, तो 2 गुना 6 12 हो गया। आगे बढ़ा तो उसको जग्गू भी मिल गया। जग्गू मिल गया तो उसका हिस्सा क्या हो गया और बढ़ गया, 3 गुना 4, 3 हिस्सा, मतलब सबको 4-4 लड्डू मिलेगा, 3 आदमी हो गया। तो फिर आगे बढ़ा तो उसका जो साथी था ढोलू भोलू, उसमें से एक मिल गया तो उसके हिस्से जो है क्या हो गए, घट गए। तो फिर कितना उसको मिलेगा, तो 3-3 लड्डू सबको मिलेगा। अंत में जो साथी उसके आ गए उसके साथ, तो उसके लड्डू की संख्या क्या हो गई, घट के अब कितना लड्डू सबको मिलेगा, 2-2 लड्डू मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है कि हम जो है यहाँ बतला सकते हैं कि यह 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है।
कहानी कहकर जो है हम उसको यह बतला सकते हैं कि 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है 12 का, तो हम इसी जगह से बतलाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सभी जो है 12 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से जो है हम पढ़ाई में इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसको बतला दिए हम। ये जो है यह सत्र जो है जिसमें हमने कोशिश किया कि बच्चे को जो है पहले उसको इंटरेस्ट सब्जेक्ट के प्रति जो है इंटरेस्ट जगाया जाए, और इंटरेस्ट जगाने के बाद जो है उसकी शिक्षा जो है आनंदपूर्ण वातावरण में जब होती है तो वह आसानी से किसी भी चीज़ को जो है क्या करता है, ग्रहण करता है। आनंदपूर्ण वातावरण जब होता है तो हमारा जो है मन सब कामों में अच्छी तरह से लगता है। इस चलते आचार्य बंधुभगिनी, मेरा यह आग्रह है कि बच्चों की शिक्षा एक पुनीत कार्य है। इस कार्य के लिए जो है थोड़ा सा मेहनत करें और नित्य प्रति हम जो है उसमें जो है अपना ध्यान लगावें और नई नई तरीके पढ़ाने का हम खोजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you, Chandrasekhar sir. You have told us that mathematics is a part and parcel of our life, not only in everyday life, but also in every sector. Mathematics is useful. It completely depends on how much we use mathematics. As it can be told that when we used to read, then this very word is divided into 3 parts: ma, de, ma, tix. If you join these letters, then you will find the word will be mathematics. Ma, T-H, de, tix. Ma, de, ma, tix. It is mathematics. It means that this is a subject of tix also. You will find in every sphere tix. Suppose that some things, some important examples were given by Shekhar sir, and in these examples the motto was clear that if you take a question, if you take a difficult question, and if you find to something special for this question, then you will find the solution, and a student will learn it easily. But as a teacher, if you handle the problem, you are not going to understand the mentality of your student. And as a teacher, I am a scholar, how can I say that such type of methods, it is your duty? Then a student will never understand your technique. But when you think, suppose that 5 plus 4 equal to 4, and a lot of questions you can create. These are called tactics. And as a Shekhar sir says, and everyone says, that math is everywhere in our life. We should use it in every sphere. So the first session is going to last, and I would like to invite our principal sir that they should present some remarks in this topic. Respected principal sir. Respected teachers, today the session taken by our
resource person, Mr. Chandrasekhar Singh. He gave a very important topic among us in joyful learning in mathematics. Not only in mathematics, we can give each and every subject among our students in enjoyable method. So it is our duty how we make it more and more easy. Thank you, a lots of thanks to our Chandrasekhar sir for such session. Okay.